Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen Amma ba'd Fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alayhi wa alayhim kathiran kathira مدد يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدد مدد يا أصحابي رسول الله المدد مدد يا مشايخنا دستور مدد يا سيدي مولانا شيخ نازم مولانا شيخ محمد المدد مدد يا رجال الله مدد يا صاحب الإمداد الطريقة الصحبة والخير في الجميع. Alhamdulillah, we have entered another Ramadan in our life and we must be thankful for this. Alhamdulillah, Alhamdulillah, हम एक बार फिर अपनी ज़िंदगी में रमज़ान में शरीक हो रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए. And as we enter this blessed month, it is a month of tazkiyah, it is a month of purification, and it is also a month of training for all of us. और जैसे हम इस महीने में दाखिल हो रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये महीना तज़किया का है और तरबियत का है. And it is a month of worshipping and it is a month of focusing within ourselves and realizing our mistakes and trying to come out of our weaknesses and our mistakes. और ये महीना वो है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने अंदर गौर करें और अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कोताहियों को, अपने गुनाहों को पहचानें और उससे बचने की कोशिश करें. जैसे ही ये महीना शुरू होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान को कैद कर लिया जाता है और हमें इबादत करने का मौका दिया जाता है कि हम बग़ैर शैतान के दखल अंदाज़ी के इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें. बट वी आर सच वीक वंस दैट डिस्पाइट शैतान बीइंग चेन्ड and not being allowed to roam around freely and to interfere in our day-to-day activities, we are still unable to worship enough. हम कमज़ोर हैं और बावजूद इसके कि शैतान को कैद कर लिया गया है, उसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग इबादत नहीं कर पाते. And the reason for this is not shaitan anymore. It is our nafs. It is our weakness that because of which we are not able to worship. और इसकी हमारी इस इबादत न कर पाने की वजह शैतान नहीं है, बल्कि हमारा नफ्स है जो हम पे हावी है, जिसकी वजह से हम इबादत नहीं कर पाते. It is our laziness which is stopping us from worshipping. और ये हमारी सुस्ती है जिसकी वजह से हम इबादत नहीं कर पाते. If we look back to the past Ramadans, we will realize that we have always, most of us in general, have always failed to worship more and try to get closer and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. अगर हम पिछले रमज़ानों पर गौर करें तो हमें ये एहसास होगा कि हम नाकाम रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो सकें. And if we look back again, we realize that we spent most of our Ramadans eating and sleeping and in laziness. और अगर हम पीछे देखें तो हमें ये एहसास होगा कि हमने ज़्यादा रमज़ानों को खाने पीने, सोने में और सुस्ती में गुजार दिए. We have just entered yet another Ramadan and it's an excellent opportunity for us to now grab on to this chance and start worshipping right from now. और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम एक बार फिर रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं और ये हमारे लिए एक मौका है कि हम इस बार से जो है इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें. And when a person decides to worship in general, shaitan tries to stop him or his nafs tries to stop him. When he somehow he pushes shaitan or he pushes his nafs down and he moves ahead and succeeds in worshipping, and that time shaitan or our nafs tries to move our focus away from the worship.
And if still the person or the murid or the person is able to overcome his nafs and shaitan, and he successfully worships, then shaitan or his nafs tries to put pride in him and tries to make him announce his worshipping, and because of which his worship, whatever he has done, is lost. जब हम नमाज या कोई इबादत करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे नफ्स और शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है। उसके बावजूद अगर कोई बंदा आगे बढ़ के इबादत में शामिल हो जाए या इबादत करना शुरू कर दे, तो हमारी नफ्स और शैतान जो है, या दोनों में से एक या दोनों जो है, हमें हमारा ध्यान वहाँ से भटकाने की कोशिश करते हैं। और कोई बंदा अगर उसके बावजूद नफ्स और शैतान को नाकाम करके इबादत कर गुजरे या इबादत कर ले, तो नफ्स और शैतान उस पर या हम पर इस तरीके से हावी होती है कि हम अपनी जो भी हमने इबादत की है, चाहे वो कबूल हुई हो या नहीं हुई हो, क्योंकि हमारी इबादतें कमज़ोर हैं, उसके बावजूद हम उस इबादत के बारे में लोगों को बताने शुरू करते हैं और रियाकारी शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उस इबादत का सवाब ज़ाया हो जाता है। But there is one method which really weakens the nafs, and that is fasting. And when we are fasting, then that person, even the strongest person or the proudest person, becomes weak. और एक तरीका है जो है रोज़े का और भूख का, जिसकी वजह से हमारी नफ्स कमज़ोर हो जाती है और मजबूत से मजबूत शख्स जो है भूख के वजह से वो ढीला हो जाता है। एंड इन दैट स्टेट ऑफ वीकनेस व्हेन ही इज़ वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज़ फॉर अस टू रियलाइज दैट वी आर वीक वंस। और उस हाल में जब हम इबादत करते हैं तो ये हमारे लिए एहसास दिलाने वाली बात है कि हम कमज़ोर हैं, एंड वी आर वीक एंड वी आर doing our sujood or we are doing our worshipping in front of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, और हम कमज़ोर है, बेबस है, और हम अल्लाह subhanahu wa ta'ala की इबादत कर रहे हैं। And this is training for us, and when we enter Ramadan we go into this state of training and this tazkiyah and purification, और ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग का महीना है, एक महीना है जहाँ पर हमें हमारा तज़किया किया जाता है, हम तज़किया से गुज़रते हैं और पाकी की तरफ जाते हैं। एंड व्हेन वी एग्जिट रमज़ान वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कैरी फॉरवर्ड दिस ट्रेनिंग विद अस थ्रू आउट द ईयर। और जब हम रमज़ान से बाहर निकलते हैं तो हमें इस तज़किया, इस ट्रेनिंग, इस प्रैक्टिसिंग, इस इन अमलों को, नेक अमलों को अपने साथ साल भर लेके चलना चाहिए। द फास्टिंग इज़ ओनली for Ramadan. Generally the first fasting is only for Ramadan, but the protection of our eyes and our ears and our heart and protecting ourselves from the sins and from the haram is throughout the year. We are able to do it while we are fasting. We are able to hold our tongues, we are able to hold our ears, we are able to hold our eyes and save ourselves from the forbidden while we are fasting. But when the Ramadan is over, we start eating and we start doing all the other forbidden things which is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. रमज़ान में हम अपने आप को खाने पीने से रोकते हैं, हमारी आँखों को हम हराम से रोकते हैं, कान को हराम से रोक लेते हैं, ज़बान को हराम से रोक लेते हैं, हराम चीज़ों को छूने से हम रोक लेते हैं अपने आप को। लेकिन जब रमज़ान पूरा हो जाता है तो हम खाने पीने के साथ साथ इन गुनाहों की तरफ भी लपक पड़ते हैं। रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा जो है वो सिर्फ रमज़ान के लिए है, लेकिन उसके बाद खाने की तो इजाज़त है रमज़ान के बाद, लेकिन बाकी गुनाहों से हमें साल भर बचना है। थ्रू आउट आवर लाइफ वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर सेविंग आवर सेल्व्स फ्रॉम ऑल द सिंस। सारी ज़िंदगी हमें कोशिश करना है कि हम अपने आप को इन गुनाहों से बचा के रखें। That is why this is a month of training or practicing for us, so that we may try to learn how we must live our lives. हमें कोशिश करना है कि हम ये सीखें कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना है। रमज़ान से हम सीख हासिल करें उस
आदत को आगे ले जाएं और उस पर अमल करते रहें हमेशा। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, as we have entered this blessed month, let us try to make maximum out of it, and let us put our pride down, because pride is a very dangerous weapon of shaitan and our nafs. तो जिस तरीके से हम इस रमज़ान में अब दाखिल हुए हैं, तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने नफ्स को और शैतान को और हमारी अना को नीचे करें, क्योंकि ये अना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। Anyone who is leading anywhere, let it be Taraweeh, or let it be any prayers, or let it be any zikr, or let it be Khatm Khwajagan, or let it be any kind of gathering, that leader must realize that he is a servant, and that leadership or that imamat is given to him as a responsibility, and he must make sure that he is humble. जब किसी शख्स को इमामत की या किसी जो लोग हैं उनसे ऊपर हो गया है, वो खादिम है, और उसे इस बात का हमेशा एहसास रहना चाहिए। एंड एवरी फास्टिंग, एवरी वर्शिपिंग, एवरी गुड डीड मस्ट humble us down. If it is not humbling us down, if it is making our ego rise, or if it's making our turban swell up, then something is wrong with what we are doing. हर इबादत, हर नमाज, हर रोज़ा, हर तिलावत, हर जिक्र, हर वो चीज़ जो हम कर रहे हैं, उसके बाद हमें हमारा अना जो है कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। ना कि इस तरीके से इंसान का दिमाग सूझ कर या उसका अमामा शरीफ बड़ा होता जाए कि मैं अब बड़ा हो गया, मैं अब बड़ा हो गया, इस तरीके से उसका एहसास ना हो उसे। और अगर वो बंदा खाकसार होता जाए, हम्बल होता जाए, यानी उसकी इबादत जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। और अगर उसके अंदर अना बढ़ती जा रही, हर रोज़े से उसकी अना बढ़ रही है, ओ मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, ओ मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं 10 लोगों को इफ्तार करा रहा हूँ, तो अगर उसकी अना बढ़ती जा रही है तो ये उसके लिए ख़तरनाक है, उससे गौर करना चाहिए। एंड इफ़ एनीवन इज़ feeding people or doing iftar, getting iftar done for people, or whatever good deed he is doing, if he is getting more and more egoistic, then there is something wrong. So ये तराजू जो है हम सबके दिल में मौजूद है। हम उसका वज़न कर सकते हैं कि क्या हम जो भी कर रहे हैं उसके बाद हमारी अना बढ़ रही है या कम हो रही है। There is a weighing scale in all our hearts, and we ourselves can check and realize whether when we are doing this, is our ego rising or going down. तो ये एहसास सबसे पहले हमारे दिलों के अंदर आएगा कि क्या हम नमाज में या ज़िक्र में या इसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं या कमतर समझते हैं। क्या अगर हम अपने आप को उनसे बेहतर समझते हैं और बाकी सबको गलत समझते, बाकी सब गलतियों से बने हैं, मैं जो हूँ मैं कभी गलती नहीं करता हूँ, और अगर गलती करता भी है इंसान खुद को उस पे बहाने ढूंढता है अपने आप को उस गलती से बचाने के लिए, और अपने आप को वो राज़ी कर लेता है कि हाँ इस वजह से मैंने ये किया तो मैं बेकसूर हूँ। तो ये एक बहुत ख़तरनाक हथियार है शैतान का, इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। सो व्हेन अ पर्सन ही कमिट्स मिस्टेक्स, or when he is doing something wrong, he may convince himself that I did this under such circumstances, so I'm innocent, and everyone else is wrong, everyone else is weak, they are all made up of sins and wrongdoings and whatever, but I am the best, I am innocent, whatever I am doing is the best. This is a very dangerous weapon of shaitan. और इस रमज़ान इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। And in this Ramadan, let us try to save ourselves from these kinds of bad doings or weaknesses. And we must also save ourselves from showing off what we are doing. What we are in the secret must be the same when we are with people. हमें अपने आप को रियाकारी से बचाना है, और जो हम अकेले में हैं उसी तरीके से हम लोगों के सामने रहें।
और जो हम लोगों के सामने है वही अकेले में रहें. And whatever we are in public, we must be the same in private. Or we may show ourselves and we may behave weak in front of people, and we may worship more and more and more and more while we are alone, not the opposite. और दूसरा एक तरीका ये है कि अपने आप को लोगों के सामने जाहिर ना करें, अपने आप को हमेशा कमज़ोर बनाए रखें, लेकिन जब हम अकेले में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें. Once there was one guy, he enters a masjid, and when he enters the masjid, he looks around, there is no one in the masjid, and he starts praying, and he starts praying fast and very weak. Suddenly while he's praying, he hears the door behind him slowly opening. So he realizes that someone has entered the masjid. So then he starts praying very slow and very careful, like a very pious man. And when he finishes his salat, he does the salam, he looks behind, it was just a cat or a sheep who entered the masjid. So this is our state actually, that we try to show off, which is very dangerous. Who was he worshipping for? To show the person, or was he worshipping to Allah subhanahu wa ta'ala? Whereas the state of ihsan is such that we may worship in such a state that we are seeing Allah. If we cannot assume that, we cannot visualize that, then we must believe that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us, not that animal. So if we are trying to enter the state of ihsan or trying to follow tariqa, we must realize this and we must try to practice this. तो एक मर्तबा एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है नमाज पढ़ने के लिए, तो देखता है कि मस्जिद में कोई भी मौजूद नहीं है, और वो नमाज शुरू करता है और नमाज गफलत में पढ़ता चला जाता है, और उससे अचानक दरवाज़ा खुलने की, आहिस्ते से खुलने की आवाज़ आती है. तो फ़ौरन वो अपने नमाज की स्पीड को बदल देता है, आहिस्ते पढ़ने लगता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बताने की कोशिश करता है. और जब वो नमाज से फारिग हो जाता है, सलाम फेर लेता है, पलट के जब देखता है तो एक कोई जानवर, बिल्ली या बकरी का बच्चा जो है वो मस्जिद में दाखिल हुआ था. तो उसे ये एहसास होता है कि वो जानवर की आवाज़ की वजह से उसने अपनी इबादत को बेहतर कर ली. तो क्या वो इबादत जो अंदर आ रहा था उसको दिखाने के लिए कर रहा था या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए कर रहा था? एहसान का मामला तो ये है, एहसान का मकाम तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस तरीके से हम नमाज़ पढ़ें कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देख रहे हैं. अगर ये नहीं कर सकते तो इस तरीके से पढ़ें कि हमें ये एहसास रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है. तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हम जो भी इबादत कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रहे हैं. Whatever we are doing it for Allah subhanahu wa ta'ala. जो कुछ भी हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं. इलाही अंत मकसूदी और रिदा का मतलूबी, इलाही अंत मकसूदी और रिदा का मतलूबी, इलाही अंत मकसूदी और रिदा का मतलूबी. We must realize this. हमें इस चीज़ का एहसास होना ज़रूरी है. जब हम लोगों से बात करें, कारोबार करें, काम करें, कुछ भी करें, चाहे वो दुनियावी मामलात हो या दीनी हो, हमें ये एहसास रहना चाहिए कि क्या जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, क्या उससे अल्लाह मुझसे राज़ी होगा या नाराज़ होगा. Whatever we are doing, may it be deen or dunya works, whatever we are doing, we must do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we are doing anything in life, we must think at that moment, or before doing it, we must realize, we must think, will Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with me if I'm doing this, or the way I'm talking to people, will Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with me. अगर हम घमंडी तरीके से किसी से बात कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या किसी को गाली दे रहे हैं या किसी को नीचा सोच रहे हैं, दिल में भी सोच रहे हैं, तो हमें उस वक्त एहसास करना चाहिए हमारे अंदर कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे अल्लाह मुझसे राज़ी होगा या नाराज़ होगा. When we are dealing with people, talking to people, or speaking lies, or whatever we are doing, we must think at that moment or before doing it, will Allah subhanahu wa ta'ala be happy with me or upset with me. और रमज़ान जो है, इस प्रैक्टिस को करने के लिए, इन अमल को करने के लिए एक बेहतरीन महीना है. हमें कोशिश करें कि हम इसमें अमल करें और अपने आप को इस तरबियत में लेकर आएँ. And Ramadan is an excellent month for us to practice these training
and try to bring these activities into regular practice. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us and bless us that we may be practically applying what we are trying to speak. Allah subhanahu wa ta'ala कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। वमन तौफीक अल-फातिहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।